is the romantic imagination and the national feeling. This is our next topic of the same chapter, first chapter of history. So students, yesterday we discussed what is a romantic imagination. It's not that romantic that you see in Bollywood movies. Not that type of romance we are talking about here. We are saying this romance is with the feeling of love and affection for one's nation, for one's country. जब हमें अपने ही देश से प्रेम की, मिलाप की भावना जागृत हो हमारे अंदर, and we feel good about our nation, there is we feeling मेरा देश, ये वाली जब feeling हो, no one should say anything wrong against my nation because it's my nation. Like we have we feeling for our family, we have we feeling for our village and so on. हम जैसे अपने परिवार को कहते हैं मेरे परिवार को कुछ नहीं कहेगा, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई बहन, मैं. Same way, when we think positive and we have a good feeling of affection, love for our nation, that is called romantic. Here in this context, under this topic, we are saying this nationalism is not only through wars and territory expansion. According to this imagination, in Europe there were many people, especially poets, singers, dancers, literary persons, जो साहित्यिक लोग होते हैं, साहित्य बनाते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, गायक होते हैं, नृत्यक होते हैं, उनका ये मानना था कि सिर्फ वॉर से, युद्ध से हम एक नेशनल फीलिंग नहीं डेवलप कर सकते. सिर्फ अपनी बाउंड्रीज बढ़ा के, दूसरों की कैप्चर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते. अपने देश का हम लव नहीं शो करते अगर हम चार के ऊपर कब्जा कर लेते हैं. It is not that nationalism is not developed through wars and territories expansion, but it is through culture. Culture में हम क्या include करते हैं? Art and poetry and stories and music and dance and food and dress and religions and language and so many other things. बहुत सारी चीजें होती हैं जो culture के अंदर हम मिलते हैं. If you consume मक्की की रोटी and सरसों का साग, is it a part of culture? Is it a part of culture or not? Yes, ma'am. Definitely it's a part of culture. Culture of Punjab. If you consume dosa sambar, it is part of South India's culture. Food भी हमारा culture का हिस्सा होता है. Here the artist said culture से हमारी national feelings को shape मिलती है. It is shaped. National feelings को strength मिलती है, spread होता है, and we are united. We feel united and we feel one. There is we feeling. हमारा देश, हमारा गांव. These type of feelings. Third one, romanticism, जो है cultural movement थी. Romanticism we have already discussed. ये एक कल्चरल मूवमेंट थी. मूवमेंट होता है एक आंदोलन, एक कंबाइंड एफर्ट, एक जॉइंट एफर्ट. कल्चर को सपोर्ट करना, थ्रू कल्चर बात करना. लड़ाई है किसी के अगेंस्ट तो कल्चर के थ्रू, नॉट बॉम्ब ब्लास्ट करके नहीं, तो अपने कल्चर को प्रमोट करना. तो दिस इज अ कल्चरल मूवमेंट फॉर डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट. सेंटिमेंट भी हमारी भावना, हमारे इमोशंस. तो अगर वो डेवलप करना है, कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे अगर किसी, here we are in Chandigarh, and Chandigarh is the capital of two states, Haryana and Punjab. And if some others, people from some other state, they criticize some Punjabi or Haryana some music or dance, then sometimes we don't feel good. कहते हैं उसे हमारे पंजाब की ड्रेस को ऐसे कहा, फूड को कहा, हमारे आर्ट को कहा. फुलकारी इज एन आर्ट. फुलकारी सुना है? एक पर्टिकुलर टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है, चाहे वो शॉल्स पे की जाए, चाहे वो दुपट्टों पे की जाए. अगर कोई उसको क्रिटिसाइज करता है इससे कि कल्चर, हमारे कल्चर की बुराई की,
So we are saying here it's a movement, cultural movement, अपने देश के लिए अच्छी भावना को, उस फीलिंग को डेवलप करने का एक मूवमेंट चली उस समय पे. रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज रीजन साइंस. रोमांटिक ये जो लोग थे, ये जो कलाकार थे, जो इस तरह से कहते हैं कि कल्चर के थ्रू हमारे देश को जोड़ो, they were against रीजन एंड साइंस. ऑलवेज कहते हैं हर चीज में हर जगह कारण और साइंस नहीं चलते. समटाइम्स वी आर इमोशनली अटैच्ड. जब हम उसके अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट सुनना ही नहीं चाहते, वी आर समटाइम मूव्ड बाय आवर इमोशंस, नॉट थ्रू साइंस, नॉट ऑलवेज थ्रू साइंस एंड लॉजिक और रीजनिंग. इमोशंस दे फोकस्ड ऑन, मतलब उनका जोर किस पे था? इमोशंस, हमारी फीलिंग्स. इंट्यूशन बोलते हैं कुछ भी होने से पहले, जो हमें पहले ही कुछ है उसके बारे में कुछ पता चलने लगे, कुछ फीलिंग्स होने लगे, समथिंग गुड वुड हैपन. इंट्यूशन होती है, मुझे तो मेरा था ना ऐसा होगा. इंट्यूशन, पहले से ही कुछ हमारी सिक्स सेंस कुछ हमें बता रही हो उसको. तो दीज आर्टिस्ट फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स, कुछ रहस्यवादी सी, कुछ अलग सी. कलेक्टिव हेरिटेज बी डेवलप्ड एज बेसिस ऑफ अ नेशन. उन्होंने कहा अगर राष्ट्र बनाना है, एक जोड़ना है, तो कलेक्टिव हेरिटेज का होना जरूरी. कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, हेरिटेज मतलब विरासत में जो हमें चीजें मिल रही हैं. हेरिटेज में भी ऑफ एनी टाइप, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो किले हैं, महल है, चाहे वो हमारे गीत संगीत है, चाहे हमारी भाषा है, ग्रंथ है, जो भी, whatever we have got from our ancestors, from our previous generations, that is called heritage. तो कल्चरल हेरिटेज, जो कलेक्टिव हेरिटेज है, उसको बेस बनाया जाए. किस चीज का? टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ व्हाट? नेशनलिज्म. राष्ट्रीयता की भावना डेवलप करनी है तो संस्कृति एक करो, उसको इकट्ठा करो. हम एक दूसरे के बारे में जाने, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बारे में जाने, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया के बारे में बताओ, सेम वे ईस्ट एंड वेस्ट एंड द फोर कॉर्नर्स. हम अगर एक दूसरे के बारे में जानेंगे तो नेचुरली वी वुड बी मोर यूनिफाइड. वी विल फील कि हमारा इंडिया ऐसा 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 ऐसा. तो सेम थिंग हैपेंड देयर इन यूरोप. उन लोगों ने भी ऐसा ही जोर दिया. जर्मन, अनदर एग्जांपल, जर्मन फिलोसोफर गॉटफ्राइड हर्डर सेड German culture is found in common people. It may be studied through common people. ये आम लोगों के बीच में मिलती है हमेशा संस्कृति, not the upper aristocrat में नहीं. सेकेंड वन, नॉबिलिटी या जो मिडिल क्लास है उसमें भी कम, लेकिन जो कॉमनर्स होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा हम कल्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं. फोक सॉन्ग्स, फोक मीन्स लोक संगीत. फोक सॉन्ग्स मतलब लोक संगीत, जो कॉमन पीपल जिस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जो कहीं पे हो सकता है रिटन फॉर्म में हो ही ना. नोवेयर दे आर रिटन, चाहे वो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांस हैं, या कुछ और, हमें फोक पोइट्री है, कुछ कविता कहने का ढंग. ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन. उस जर्मन फिलोसोफर ने कहा अगर जर्मनी की सही देखना है, जर्मनी को जानना है, तो आम लोगों का संगीत, गीत, वहां की कविताएं, वहां के डांस को पढ़िए, जानिए, देखिए. वो है सही जर्मन का जो एक स्पिरिट है, आत्मा है नेशन की, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन. उसको जर्मन भाषा में कहा गया वोकचीस्ट. तो इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू बिकॉज इट्स अ जर्मन टर्म. ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, जर्मन का है. Then about after this, common people, and this is Vogtist. This here a term, new term होता है Das Vog, जहाँ पर उसने कहा जर्मन कल्चर पाया जाता है कॉमन पीपल में, तो उसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया था Das Vog. ये भी जर्मन वर्ड है, ये भी जर्मनी भाषा का शब्द है. Then illiterate masses in Poland, another example. एक और एग्जाम्पल आ रहा है यूरोप का. जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए ये कल्चर एक बहुत बड़ा साधन होता है कुछ भी सीखने का. उनको फोक म्यूजिक आता है, फोक डांस आता है, फोक पोइट्री आती है, सुना सुनाया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. पढ़े लिखे तो है, तो वो बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ सकते क्या हुआ था. तो फोक जो कल्चर है वो बहुत बड़ा रोल
प्ले करता है। थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज नेशनल फीलिंग्स केप्ट अलाइव। पोलैंड में जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अशिक्षित लोग थे, उन्होंने इसके थ्रू अपने कल्चर को अलाइव रखा, जिंदा रखा। रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उसके बाद रशिया ने उनको बहुत ब्रूटली उनको मारा, बहुत, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड जो नहीं मानते थे। उन्होंने कहा यहाँ की रशियन गवर्नमेंट ने सोचा यहाँ की भाषा को खत्म करो। स्कूल्स में पोलैंड में से पॉलिश लैंग्वेज को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। हमारी रशियन में पढ़ो, हमारे रशिया के बारे में जानो। तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया? They developed their culture through local language and folk culture, folk song, folk dance, folk music, the old methods of enchanting some particular hymns. Example is Carol Crispi was an opera and he was a dancer and a singer. So he, through his dance, through two types of dances of Poland, Polonese and Mazurka, इन दो को उसने नेशनल सिंबल बनाया, राष्ट्रीय चिन्ह बनाया, और इसके थ्रू उसने लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप। Is it clear? First, अब मैं इस सारे को समराइज कर रही हूँ। First, we discussed about the whole Europe, how romantic imagination developed, and through romantic imagination how national feelings were developed. तो romantic imagination की definition की हमने पहले, उसमें folk dance, folk music, folk culture and poetry etc etc we discussed. Role of romanticism क्या रहा? Then we took example of Germany. Germany में क्या था? Then we took a little bit about Poland also, and how Russia tried to suppress the culture of Poland, but it was kept alive through dance performances and music and some other folk material. Thank you.